Hello dear friends, so today we are going to start with the kingdom Monera. Monera originates from Greek word monerans, which means single, and it is also known as kingdom of prokaryotes. It is a very important time. Okay, kingdom of prokaryotes. Pro means primitive and karyotes mean nucleus, means primitive nucleus. Okay, and all the monorails are single-celled or unicellular. Earlier the monera is known as prokaryote and the prokaryotic ancestor. The prokaryotic cells are earlier known as prokaryotic ancestors. After evolution they came to know that the kingdom is Monera, and these are not prokaryotic ancestor but prokaryotic cell. Okay, the smallest and most abundant unicellular organism and most primitive form of life. Okay, the smallest and the most abundant unicellular organisms are monerans. Clear? So where they are found? In the ocean bottom, dry desert, iceberg bottom and hot spring. Now let me discuss about the Monera habitat. So Monera may be inside or on the organism to feed its body and may be present in the dust particles also. Monera is of two types, Archibacteria and Eubacteria. Archie are bacteria. Archibacteria is what? Nothing Asian bacteria, and it is true bacteria. Archibacteria, the archibacterians can survive in extreme conditions like hydrothermal vents, salty marshes, and hot sulfur springs. Now, the cell wall is made up of archaea or archibacteria is made up of pseudopeptide glycogen, glycoprotein, pure or true proteins, and polysaccharides. Okay, and this question came in your board exams also. Now let me discuss the types of archaea, but on the basis of oxygen necessity. On the basis of oxygen necessity, archaea is of two types, aerobes and anaerobes. Aerobes and anaerobes, these two terms we have discussed in the respiration. Aerobes is in the presence of oxygen and anaerobe is in the absence of oxygen. Based on the anaerobic nature means anaerobic is further classified into two types, which is obligate anaerobes and fluctuative anaerobes. As the name suggests that obligates mean they can survive only in anaerobic condition, but fluctuative means they fluctuate or maybe do aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, now we will discuss the types of archaea on the basis of habitat. So on the basis of habitat, it has three types again, that is methogens, halophils and thermoacidophils. Okay, now we will discuss now methogens. So methogen, how it is simply the formation of methane by the formation of carbon dioxide plus hydrogen, which will give us methane under methogens. Okay, and it is strict anaerobe. Methogens are strict anaerobe and chemoautotrophic. So what is chemoautotrophic? That organisms produce their own energy using inorganic chemical in their environment. Now where they are present? They are present in the marshes, ruminant stomach and biogas production. We have seen in the biogas production that how methane is formed. Next term, that is halophils, thrive in high salt concentration and are aerobes. These are not anaerobes but are aerobes which can survive in the presence of oxygen. Some have carotene pigment in the membrane. It is simply that in the light energy under carotene pigment, they will convert light energy into the chemical energy. Now we will discuss about bacteria. Monerans is generally containing bacteria. So type of moneran bacteria is five.
heterotrophic bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, rickettsia and actinomycetes. Okay, heterotrophic bacteria, these are pathogens of diseases. These cause a lot of diseases, and here naked cellular DNA is present and membrane bound cell organelles are absent. Now rigid cell wall means to say cell wall is made up of peptide glycogen and they are not motile, or we can say that flagella are not present. Okay, flagella are not present means to say कि heterotrophic bacteria जो है flagella क्या होते हैं जो हम देखते हैं, दिस इज flagella. ठीक है, अभी लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन के चलते हैं, चलते कैसे हैं ऐसे. फ्लैजिला हमने देखा ना, फ्लैजिला, सिलाए और विलाए, ये तीनों एक ही चीज़ है. ये देखो फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं, ऐसे चलेगा वो कुछ फ्लैजिला, और इसकी मूवमेंट से वो क्या कर देगा, आगे को चल के अपनी लोकोमोटिव पोजीशन चेंज कर देगा. आई होप समझ आ गया होगा. अभी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, पहले तो उसके शेप के बेसिस पे. शेप आप देख सकते हैं, कोकस मीन्स वो सर्कुलर शेप में है, बैसिलस मीन्स वो कैप्सूल शेप में है, स्पाइरल मीन्स वो स्नेक की शेप में है, विब्रियो मीन्स अ कैप्सूल शेप्ड विद द टेल. ओके, अभी क्लस्टर के बेस पे कोकस वही जो हमने सेम ऊपर चीज़ देखी, डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई, ये जो एक यूनिट होती है इसको कोकाई बोलते हैं हम, यानी कि ये जो एक चीज़ होगी ना इसको कोकाई बोलेंगे. ठीक है, डिप्लोकोकाई यानी कि दो कोकाई. ठीक है, तो ये 2 का बॉन्ड बना दिया हमने. टेट्रेड, टेट्रे आपको पता है ना क्या है टेट्रा, 4, तो देखो 4 बन गए. स्ट्रिप्टोकोकाई, इसका याद रखना है स्टेप्स में. ठीक है जी. सेक्रीना, सेक्रीना मीन्स सक्रीन, यानी कि पीछे को बन रही है, यानी कि 3D फॉर्मेशन होती है. फिर आपको जो एक लास्ट में बचा होगा वो खुद ही रह जाएगा याद, स्टेप्लोकोकाई मीन्स जो चेन फॉर्म में होगा. ठीक है, अभी हम करेंगे फ्लैजिलेशन बेस के ऊपर. तो फ्लैजिलेशन बेस के ऊपर है हमारे पास मोनोट्राइकोकियस, लैप्टोट्रायोकियस, एम्ट्रोफोकियस एंड पटीरोकोकस. ओके, तो अभी देखो फर्स्ट वाले में क्या है, ओनली 1 फ्लैजिला है. यहाँ पे दोनों साइड को फ्लैजिले हैं बट इन ग्रेट अमाउंट. थर्ड स्टेज में हमारे पास क्या है कि फ्लैजिला प्रेजेंट तो है बट ओनली सिंगल फ्लैजिला. हियर फ्लैजिला इज देयर एंड वन साइड देयर आर मैनी फ्लैजिले. ओके, बैक्टीरिया के साथ बहुत ज़्यादा फ्लैजिले एक ही साइड को है. बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर. एंडोस्पोर यानी कि जो एग फर्टिलाइज हुआ है वो अंदर है, और एक्सोस्पोर में वो एग कहाँ है, बाहर है. ठीक है, बैक्टीरिया सेल वॉल के बेस के ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में है. ये ग्राम स्टेनिंग का टॉपिक, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा. ठीक है, अभी देखिए इनका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड दे आर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मोरीन. ओके, IMP मैंने मार्क कर दिया है. ठीक है जी. पेप्टिक ग्लाइकोजन मतलब कि इनकी सेल वॉल जो हमने देख लिया. अल्टरनेट रिपीट्स ऑफ नैक, नैक की फुल फॉर्म क्या होगी, एन एसिडोग्लाइकेसेन, एंड नेम एन एसिडलाइरिक एसिड. ठीक है जी. अभी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये दोनों मैं आपको कब समझाऊंगा, ग्राम स्टेनिंग में समझाऊंगा. अभी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपको पता है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक है. ऑटोट्रॉफिक आगे फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक आगे फिर 3 टाइप्स का है, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक. ठीक है जी. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एजिटोबैक्टर, जो कौन सी न्यूट्रिशन शो करता है, सिम्बायोटिक शो करता है. ये क्वेश्चन 1 में आ चुका है. नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट है. क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन कितने हैं, 30 ट्रिलियन है, बट नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, 39 ट्रिलियन. यानी कि बैक्टीरिया हमेशा ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में होगा. ठीक है,
तो अभी हमने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तक यहाँ पे डिस्कस किया, अभी साइनोबैक्टीरिया डिस्कस करते हैं, सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहलाता है, ठीक है, और ये ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स हैं। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, और फोटोऑटोट्रॉफ्स हैं। ये कहाँ पे फाइंड होते हैं, तो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, हॉट सल्फर स्प्रिंग, मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक्स एंड फ्रोजन वाटर, बट दे कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके, अभी ये क्वेश्चन नीट में आता है कि वाई इज रेड सी रेड। तो रेड सी रेड क्यों है, क्योंकि जो ट्राइकोन्डेशियम, अराइथ्रेसियम, planktonic cyanobacteria that has a red pigment and make the sea water red in color। यानी कि ये साइनोबैक्टीरिया है जिसके पास रेड पिगमेंट होता है, जो क्या कर देता है, रेड सी को यानी कि सी वाटर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, उसको रेड सी बोलते हैं। अभी साइनोबैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। अभी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया ये पूछा जाता है, म्यूसिलेजियस शीट जो है वो साइनोबैक्टीरिया में कौन से स्ट्रक्चर में है, साइनोबैक्टीरिया कौन से स्ट्रक्चर में म्यूसिलेजियस शीट होती है। सो आंसर इज फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है जी। अभी आगे साइनोबैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज इट कि फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स है ये, ठीक है, फोडर है और मैन्योर, फोडर, मैन्योर, प्रिमलेरिया एंड फूड, ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इससे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ये साइनोबैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आपकी आती ही आती है, ठीक है जी। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म मीन्स कि दैट बिलोंग्स टू मॉलिकाटस। ये हम आगे करेंगे जब हम अपना एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये देखिए कि MLO PPLO जो हम छोटे होते पढ़ते थे 9th क्लास में, तो देखिए माइकोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको, एंड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये डिस्कवर किसने किया था, नोकार्ट्स एंड रॉज ने, ठीक है जी। ग्राम नेगेटिव है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्ट्रैंड DNA, एंड न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक एंड मेजॉरिटियन इज पैरासाइटिक। कभी पूछा जाए माइकोप्लाज्म में कौन सा न्यूट्रिशन है, सो पैरासाइटिक, अगर पैरासाइटिक ऑप्शन नहीं है तो सैप्रोफाइटिक, ठीक है। डिसीजेस क्या क्या कोस्ट करती हैं ये, तो देखिए लिटिल लीफ डिसीज इन ब्रिंजल, विच वॉर्म इन प्लांट्स एंड यूरिथेरस इन ह्यूमन, and pleuropneumonia in domestic animals. Now next we come to Rickettsia. What is Rickettsia? It is also the another type of bacteria which causes Rocky Mountain spotted fever. Question neat. And it is gram negative and bacilli structure है इसका, ठीक है, और obligate intracellular parasites हैं ये। लास्ट टाइप अभी हम करने वाले हैं, दैट इज एस्टिनोमाइट्स। तो ये नेचुरल पैरामीशियम्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट जो यूज़ करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए वो ये होते हैं, और एक गुड बैक्टीरिया है एक टाइप का, ठीक है। सिंथेसिस जो है वो मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स की करती हैं ये, और ये नॉन फ्लैजिलेट्स हैं, यानी कि इसमें फ्लैजिला नहीं है। तो इसमें फ्लैजिला नहीं है जिस बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो मूव नहीं कर सकता, इट मीन्स दे आर नॉट मूवेबल एंड नॉन मोटाइल। और यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है, जो गुड बैक्टीरिया होगा वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एक ही है, ये बैक्टीरिया विद ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट बैक्टीरिया विद ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स, सो दैट इज एस्टिनोमाइट्स। ओके, सो अभी हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा जो हम करेंगे। इसमें जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है तो हम उसको क्लियर करेंगे, जितने भी इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड के ऊपर कन्फ्यूज़न होती है
और फिलहाल आज मैंने आपको जो नीट का क्वेश्चन मेन बताया दैट इज़ रॉकी माउंटेन स्पॉट फीवर का, और एक मैंने ये किसने एमएलओ और पीपीएलओ को बताया था, सो दैट इज़ नोकार्ड एंड रॉक्स ने बताया था। एंड रेड सी रेड क्यों है, तो वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से है। म्यूसिलेजी शीट्स कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में है, तो फिलामेंटस में है। एंड मैंने आपको ये बताया था एज़ोटोबैक्टर कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करता है। और आपको मैंने एक और चीज़ करवाई थी जो कि क्या है, किंगडम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसको नहीं भूलना है कि मोनेरा के सेकंड नेम क्या है, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन, एंड कल हम करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा, सो ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू।